Bas, I got it. Namaskar. I welcome each and every sincere aspirant for this beautiful spiritual discourse. For the last few days, I have been teaching you the insight of the grandest scripture, the beautiful Bhagavad Gita. And in these 3-4 episodes, we have learned something. We have inculcated a beautiful, grandest phenomenal knowledge with which we have sufficiently, the knowledge has been sufficiently nurtured into our neurological brain. And sufficiently we have transformed, reformed our thinking pattern. And the first and foremost, I mean to say, the nucleus of the knowledge so far learned is, the factor number 1 is, in spite of all the intricacies, all the hardships we are facing in our real life, still we should be joyful, blissful. We should realize that we are in the joyful mood, we are in the blissful mood. The second thing is, Lord Sri Krishna has begun to analyze what is the cause of worry for a human being. What is the cause of worry for a human being? The cause of worry for a human being, for every human being is scared of death. The fear of death is the first and foremost cause for every human being to suffer with a tragedy. He's so scared of death, the fear of death. So the cause of worry of human being is fear of death. He has attacked the fear of death because he has taught something beautiful about our foreverness. He has taught something beautiful about our foreverness. He said, we are all forever beings, including Lord Sri Krishna, every one of us, however stupid he may be, however ignorant he may be, however violent he may be, however ruthless he may be, but still, including Lord Sri Krishna, every one of us are forever beings. The more and more you realize that you are forever being, the more and more the fear of death is going to be discarded by default from your thinking pattern. The more and more your thinking pattern is, the more and more you are able to discard the death from your thinking pattern, the more and more fear of death is lost. The more and more fear of death is lost, the more and more worrying considering the concept of death is also lost. So Lord Sri Krishna was trying to shield us from all the angles. We know pretty well, for every human being, the cause of worry is, the cause of tragedy is death. So in the first sloka, I mean to say in the chapter number 2, verse number 12 itself, he has attacked and cleared our worry, clarifying that we are forever beings. And the second thing, naturally, the tendency of human being is worry for his embodiment. Because when he said that we are forever beings, when he said that we are forever beings, we know people are dying. We know all of us are suffering with death. Then naturally we will realize that which is dying in us is not the soul. That which is dying is only physical embodiment. So naturally the tendency of human being is like that. Now, though we are forever, this valuable physical embodiment is going to be ruined, is going to be perished, is going to be damaged, is going to die. Then
Without embodiment, we have got to suffer. Lord Sri Krishna has attacked that cause also by nurturing the beautiful knowledge. He has clarified that, oh, what is the cause of your worry now? You are worrying for the embodiment? Yes, sir. Though I am alive, I will not be having embodiment. No. He said, no, 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 don't worry. If the soul wants to visit this earth planet once again, it is very easy for the soul, it is very easy for the spirit to create another embodiment, to opt for another embodiment. It is very simple because it has clarified with an example. Like, see, a soul, when it enters into the embodiment is having certain physical properties. Accordingly, the physical embodiment is enjoying different ages, different phases. Age-wise, the phase is going to change. The soul is able to accommodate the embodiment even when the embodiment is in childhood. When the embodiment has grown sufficiently and it has become younger, still the soul is able to accommodate that body. After certain time, supposing if the embodiment is suffering with the old age, even then the soul is able to handle the embodiment in the old age also. In the same way, supposing the embodiment is perished, the soul is entitled to create a new embodiment and enter into the realm of new physical embodiment. So it is as simple as such. It is as natural as such. Like that, all the two worries have been attacked by Lord Sri Krishna just by giving us some knowledge. Knowledge number one is we are there in the existence forever, and we are going to continue in the existence forever. That means he means to say that we are forever. And the second beautiful, grandest phenomenon knowledge, the elixir taught by Lord Sri Krishna is, don't worry for the embodiment. If the embodiment is perished, if really you want to visit this earth planet one more time, just like that, you can create an embodiment, you can celebrate this embodiment. So worry for the sake of death is gone. Worry for the sake of death of embodiment is also gone. See the beauty of grandest, beautiful scripture called Bhagavad Gita. It is like Vag Vaibhav. It is like Vag Vaibhav. It is like Panchanga. Bhagavad Gita is Panchanga. Panchanga means people misunderstood as if it is knowing something about our future like that. Every New Year, people are fond of knowing the Panchanga. Panchanga means Panchanga. Panchanga means answers to 5 questions. What are the 5 questions? Who am I? From where I have come? What I have got to do here? What is the hurdle for my spiritual target? Supposing if I reach my spiritual target, what is that I am going to accomplish? And what is the way out to clear the hurdles? All these answers for these questions is Panchanga. Panchanga. See the beauty of Bhagavad Gita in the 2 slokas. The cause of worry for the human being is about his foreverness, about not being the forever being, worry about his death. Both are gone. So this is the crux of the teachings. This is the synopsis of the teachings, or the nucleus of the teachings. For the last few episodes, we have enriched ourselves with this knowledge. So now this is going to be our right. And step by step, what I have told, I'll utter each particular sentence so that it can be translated in Hindi. It will be more easy for them to understand. For you to translate, for them to understand. For the last few episodes, we are trying to learn the insight of the grandest scripture called Bhagavad Gita. Yes. So पिछले 4 सत्रों में हमने एक महान ग्रंथ भगवद गीता
उसके कुछ श्लोकों का अध्ययन किया। यस, उसका अंतरार्थ को अनुष्ठान करने का प्रयास आज भी चालू है। उसका अंतरार्थ को अनुष्ठान करने का प्रयास आज भी हो रहा है। तो अभी पिछले 3-4 सत्रों में जो भगवत गीता का इस महान ग्रंथ का जो उसका अध्ययन जो हमने किया, और आज भी उसी को जारी रखते हुए आज भी उसका आगे उसका अंतरार्थ, उसके अंतरार्थ का अध्ययन करने हम जा रहे हैं। Okay. And before starting today's episode, today's new sloka, let us recap what we have learned for the last few episodes. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज के लिए कुछ नया ज्ञान प्राप्त करें, दूसरे श्लोक की ओर बढ़ें, इससे पहले अब तक हमने जो ज्ञान लिया, अब तक जिन श्लोकों का अंतरार्थ हमने समझा, उसको एक बार उसका पुनरावलोकन करेंगे। The first and foremost thing is asocha. Sloka number 2, verse number 11. In spite of all the intricacies we are facing in this real life, still we should always be joyful, blissful, in the state of ecstasy, exuberance, because it is being taught by Lord Sri Krishna. Lord Sri Krishna has advised us to be a joyful entity. Yes. तो द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक में हमने एक अद्भुत मंत्र सीखा, अशोच्यान। इसमें श्री कृष्ण ने हमें कहा कि उन्होंने हमें बताया कि चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, आपके भौतिक जीवन में चाहे कुछ भी घट रहा हो, कितनी भी विपदाएं हो, कितना भी क्लेश हो, लेकिन आपको सदा आनंद में ही रहना चाहिए। Fine. That is the Lord Mahimanvit Lord Sri Krishna का उपदेश है आनंद ब्रह्मानंद पारवस्य. First thing is asocha. Next thing is discard the word, discard the concept, death from your thinking pattern. आपका विचारधारा से मृत्यु नामक एक अवैधिक अंश को तुरंत ही मुंडन करो, क्योंकि आप सब शाश्वत है। आपका मृत्यु इतना कमजोर है कि आपका शाश्वतत्व को एक क्षण के लिए भी रोकने का क्षमता उसमें नहीं है। जब मृत्यु आपका जिंदगी को नहीं रोक सकता है, नहीं, it is when it is unable to stop your life, then there is no death. So discard death from your thinking pattern. तो महान गुरु श्री कृष्ण हमें आगे उपदेश करते हैं कि एक मृत्यु नामक शब्द का अपने जीवन में से, अपनी विचारधारा में से तुरंत इसी क्षण उस शब्द का मुंडन कर दीजिए, क्योंकि आगे श्लोक में वो कहते हैं कि हम सब शाश्वत हैं और हमारा जीवन शाश्वत है, हम शाश्वत हैं। ये मृत्यु नामक शब्द इतना कमजोर है, इतना दुर्बल है कि उसमें आपके जीवन को, आपकी जीवन धारा को एक क्षण के लिए भी रोकने की सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है। तो जिस शब्द में आपके जीवन को रोकने की सामर्थ्य नहीं है, तो जीवन सदा ही चलता रहेगा, तो ऐसा शब्द, उस शब्द का तुरंत हमें मुंडन कर देना चाहिए। Yes. And the cause of worry for every human being is death. In the first sloka itself, he has attacked that, he has discarded that cause. The cause of every human being is, he considers death, he believes in death. In the very first sloka itself, he has cleared that source of fear, that source of worry. Yes. तो श्री कृष्ण ने अपने पहले ही श्लोकों में क्या कहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी चिंता, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी चिंता
और उसका कारण होता है मृत्यु का भय और मृत्यु और मृत्यु का भय। मैं तो विनय पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसी वक्त इसी क्षण आपके विचारधारा से मृत्यु नामक एक अवैधिक अंश को तुरंत इमीडिएट मुंडन कर देना। यस। तो गुरुजी, आप हम सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि इसी क्षण मृत्यु नामक इस अवैधिक शब्द को अपनी विचारधारा से, अपने दृष्टिकोण से इसी क्षण तत्काल हम सब मुंडन कर दें। फाइन। एंड व्हाट इज अनदर कॉज ऑफ वरी? नो, मुझे तो ये मालूम है कि मैं शाश्वत हूँ, मैं शाश्वत ही, मेरा अस्तित्व भी शाश्वत है, लेकिन मेरा शरीर तो मर रहा है ना, मेरा शरीर तो मर रहा है ना। इसके वास्ते अभी मेरा चिंता मेरे शाश्वत के वजह से नहीं, मेरा अशाश्वत के वजह से नहीं, मेरे शरीर की वजह से। शरीर मरने का संभव है ना, इसी के लिए, इसलिए मैं रो रहा हूँ, इसलिए मैं विचार रहा हूँ। That also says Lord श्री कृष्ण says, अरे अगर आत्म चैतन्य और एक बार फिर से पृथ्वी पर आने का उसका मन है, उसके चुनाव से और एक नया शरीर को सृजन करने का समर्थता उसका सहजत्व है। अगर आत्म चैतन्य और एक बार पृथ्वी को आने का मन है, तो आसानी से और एक नया शरीर को सृजन करने का क्षमता उसका सहजत्व है। इसके बाद दैट इज व्हाई डोंट वरी फॉर द एम्बॉडीमेंट आल्सो, ही सेज। यस। तो श्री कृष्ण जब अर्जुन आगे बोलता है कि यदि मैं मान भी लूं कि यदि हम शाश्वत हैं, आत्म चैतन्य शाश्वत है, लेकिन फिर भी ये शरीर तो मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएगा, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो अब मेरी चिंता का कारण मेरी मृत्यु नहीं है, इस शरीर का नष्ट हो जाना, क्योंकि मैं इस शरीर से बहुत, मुझे प्रिय है ये शरीर, इसीलिए इसका नष्ट हो जाना ही मेरी चिंता का कारण है। इस चिंता का भी समाधान करते हुए गुरु श्री कृष्ण हम सबको कहते हैं कि इसकी भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आत्म चैतन्य चाहे, यदि आत्म चैतन्य का ये चुनाव हो कि मुझे और भी आगे भी अपना जीवन पृथ्वी तल पर, भूतल पर मुझे आना है और यहाँ रहना है, तो बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से आत्म चैतन्य एक और शरीर का सृजन कर सकता है। ये आत्म चैतन्य की सहजता है, ये आत्मा की सहजता है कि वो अपने चुनाव से, यदि वो चाहे, यदि उसकी इच्छा हो, तो वो एक और शरीर का, इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी एक और शरीर का सृजन बहुत ही आसानी से और सहजता से कर सकता है। That is the crux of the teachings, सारभूत अंश ये 2 श्लोकों में। And now we are going to learn the magical sloka, the sloka number 2, verse number 14. Please read sloka number 2, verse number 14 of Shanti says. जी जी गुरु जी। अध्याय 2, श्लोक नंबर 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यान् तितिक्षस्व भारत। और एक बार। अध्याय 2 श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनः नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। यस। इसका अर्थ, हे कुंती पुत्र, जी इसका भाव, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले
इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसीलिए हे भारत उनको तू सहन कर। ठीक है। जी, टीका। एक एक शब्द का अर्थ। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र। शीतोष्ण सर्दी गर्मी, शीतोष्ण सुख दुखदाह सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले। मात्रा स्पर्शाह इंद्रिय और विषयों के संयोग। तू अर्थात तो। आगमा पायिनः उत्पत्ति विनाशशील। अनित्याः अनित्य है। भारत हे भारत। तान उनको। तितिक्ष्व तितिक्षस्व सहन कर। See, in English it is like this. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception. O scion of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. One must learn to tolerate them without being disturbed. See, let me explain this. See, for an ordinary human being who is considering himself as the human being, the cause of his first worry is any moment he may disappear. Any moment his life may come to his life, there are chances that his life may come to an end. So he is always believing that I'm not forever. I'm there for a while. After a while, anyhow, I'm going to disappear. So for every human being, the cause of his worry is he is considering himself as he is not forever. He's only a temporary being. That has already been clarified by Lord Sri Krishna, saying that no, you are forever, he is forever, every one of us are forever. That is clear. Second thing is what? Though I am forever, my embodiment is going to perish, no? It is going to die, no? It is going to suffer death, no? That is why I'm a little bit worried. And that also is clarified in chapter number 2, verse number 13, saying that if really the soul wants to visit this planet one more time, you can just like that create a new embodiment and enter into the new embodiment. That is why worrying for the sake of depth of embodiment is stupidity. That is also as clarified. Then for an ordinary human being, what is the source of, what is the another cause of worry? दुखी होने का वजह क्या है? For an ordinary human being, another source of worry is the incidents which are happening in his real life. The incidents which are happening in real life. Sometimes the incidents are pro to us. Sometimes the incidents are very against us. Some incidents are advantageous. Some incidents are disadvantageous. So, इसी को बोलते हैं सुख दुख. When the incidents are in our favor, it is sukh. When the incidents are disfavoring us, it is dukh. Now, in this beautiful sloka, he has attacked that cause of worry. Okay? So, step by step, I'll teach you. In this beautiful particular sloka, Lord Sri Krishna was trying to console the human being by revealing the beautiful, grandest truth about ourselves. Again, I repeat, in this beautiful sloka, Lord Sri Krishna is trying to console the human being
is loving the human being, console the human being by nurturing some more truth about us. तो गुरु जी कह रहे हैं कि इस प्रस्तुत श्लोक में गुरु श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को, मानव जाति को अपना प्यार देते हुए, उन्हें प्रेम करते हुए, उन्हें सांत्वना देते हुए और उन्हें उनका पोषण कर रहे हैं, उन्हें नर्चर कर रहे हैं। सिर्फ सत्य, what is that he is doing? He is not giving any property to us. He has not done any miracle. But the simple treatment is, he is revealing the grandest truth about us. तो यहाँ हमारा पोषण, वो हमें कुछ धन संपत्ति या कुछ हमें देकर हमारा पोषण नहीं कर रहे हैं, वे हमें एक अद्भुत ज्ञान देकर, हमें हमारे बारे में कुछ अद्भुत ज्ञान देकर हमारा पोषण कर रहे हैं, हमें हमारा उद्धार कर रहे हैं। चमत्कार सिर्फ सच है जी, चमत्कार सिर्फ सच है। The magical thing is truth. Fine. Yes. तो यहाँ पर जो चमत्कारी जो है वो है सत्य। तो वो सत्य देकर हमको वो अपना प्यार, अपनी सांत्वना, वो एक सत्य, हमारे बारे में एक सत्य हमें समझाकर इस चमत्कारी सत्य के द्वारा हमारा पोषण कर रहे हैं। Fine. See, for an ordinary human being, what is the cause of worry? For an ordinary human being, what is the cause of worry? The cause of worry for an ordinary human being is sukh or dukh. Yes. एक सामान्य मनुष्य के लिए उसकी चिंता का क्या कारण हो सकता है? तो एक सामान्य मनुष्य की चिंता का कारण सुख और दुख ही है। See, what is sukh, what is dukh? Both sukh and dukh are the outcome of physicality. Yes. तो ये जो सुख और दुख क्या होता है? सुख और दुख ये दोनों ही भौतिक जगत के परिणाम है, हमारी भौतिक जीवन के परिणाम। करेक्ट, हमारे भौतिक जीवन के परिणाम है। पदार्थ रूप जगत में जो घटनाएं घट रहे हैं, समझो वो घटनाएं अपने अनुकूल हुआ तो वो सुख मिलता है, समझो वो घटनाएं घट रहे हैं वो प्रतिकूल रूप से हुआ तो हमें उससे दुख होता है। दैट इज वाई हमको ये साफ साफ हो रहा है, क्लैरिफाई हो रहा है कि पदार्थ रूप जगत में जो घटना घट रहे हैं वो घटना से हमको सुख आता है, नहीं तो दुख आता है। एंड व्हाट ही सेज इज, he has compared the sukh dukh like climate, like summer, winter, the seasons are coming now. After summer it is bound to, we have the pleasure of winter. After winter, rainy season. It is like nature, it is like environment. These are happening, and what he means to say is neither sukh is going to be with you forever, nor dukh is going to be with you forever. It is like a passing cloud. आता है जाता है। अगर अभी सुख है तो कुछ दिनों में सुख दुख के रूप में बदल जाएगा, अगर अभी दुख है, दुखी है तो आप दुख सुख के रूप में बदल जाएगा। इसमें परेशानी होने का क्या है बेटा? इसमें परेशानी होने का क्या है? इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना मूल्यवान नहीं है ना। सुख आता है, थोड़े दिन में दुख के रूप में बदल जाता है। अभी आप दुखी हो, थोड़े दिनों में दुखी सुख के रूप में बदल जाएगा। अरे इसमें परेशान होने का क्या है बेटा? इतना खूबसूरत जिंदगी, इसका मजा ले लो, सुख और दुख को छोड़ दो, क्योंकि दे आर लाइक पासिंग क्लाउड्स। Nobody is going to be in the sukh forever, nobody is going to be in the dukh forever. So that is the thing. Yes. तो गुरुजी यहाँ कह रहे हैं कि जो मनुष्य है उसके सुख, उन्होंने कहा कि उसकी चिंता का कारण सुख और दुख है।
तो ये सुख दुख क्या है? तो भौतिक जगत के परिणाम है। और ये भौतिक जगत के परिणाम, ये भौतिक जगत, ये पदार्थ रूप जगत में जब भी हमारे साथ कोई भी अनुकूल घटना हो जाती है, जब कुछ भी हमारे फेवर में होता है, हमारे अनुकूल, हमारी इच्छा के अनुरूप होता है, तो हम उसे सुख कहते हैं। यदि मान लीजिए कि वो हमारे प्रतिकूल हुआ और हमारी इच्छा के अनुरूप हमारे साथ सब कुछ घटा नहीं, उसके विपरीत घट गया, तो हम उसे दुख कहते हैं। तो श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अ, हमारे जो सुख दुख हैं, इनको मौसमों की तरह, इन्हें मौसम से इनकी तुलना की है, कि जैसे कि एक के बाद एक ऋतुएं आती जाती हैं, मौसम आते जाते हैं, कि सर्दियों के बाद में गर्मी होती है, गर्मी के बाद में सर्दी के बाद में गर्मियां आती हैं, गर्मी के बाद में बारिश आती है। तो ऐसे एक के बाद एक ऋतुएं एक के बाद एक आती जाती हैं। वैसे ही श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि ना तो आपका सुख हमेशा के लिए रहने वाला है और ना ही दुख आपके लिए हमेशा के लिए रहने वाला है। सुख कुछ दिनों में, कुछ ही समय में दुख में परिवर्तित हो जाएगा और दुख भी कुछ ही समय में सुख में परिवर्तित हो जाएगा। तो कुछ भी आपके साथ नित्य रूप से रहेगा नहीं। इसीलिए तो जैसे ऋतुएं आती जाती हैं, वैसे ही सुख और दुख हमारे जीवन में आते जाते हैं। तो इसके लिए आपको इतना अधिक चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। Okay, fine, well explained. And the beauty is, आत्मा इतना शाश्वत है, सुख दुख इतना अशाश्वत है। जितना जितना ही आत्मा शाश्वत है, उतना ही सुख दुख अशाश्वत है। लेकिन हमको गलतफहमी हो गया कि सुख दुख शाश्वत है, हम अशाश्वत। लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा, हमको ये मानना पड़ेगा कि हम शाश्वत है। मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं शाश्वत हूं। लेकिन इस सुख दुख अशाश्वत है। आपको जितना अपना शाश्वत के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जितना आपको इस सुख दुख के बारे में अशाश्वत ऐसा जानकारी मिलेगी, then naturally be in the state of bliss. That is the magic. जी गुरुजी। तो गुरुजी यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वास्तविकता तो ये है, सत्य तो ये है कि आत्मा शाश्वत है और ये सुख दुख अशाश्वत है। लेकिन हमें भ्रमवश हम ऐसा मान बैठे हैं कि मानो ये सुख दुख ही शाश्वत है और आत्मा अशाश्वत है। हम लेकिन अशाश्वत है। जी, हम अशाश्वत है। हम सुख दुख ही शाश्वत है और हम अशाश्वत है। तो Fine. हमें ऐसी गलत फहमी और भ्रम हो गया है। लेकिन यदि श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए इस श्लोक के अनुसार, गुरुजी के बताए हुए इस अर्थ के अनुसार, यदि हम जितना अधिक से अधिक अपने शाश्वत तत्व के बारे में जानते जाएंगे, ज्ञान लेते जाएंगे और जितना इस सुख और दुख की अशाश्वतता के बारे में हम जितना अधिक से अधिक जानते जाएंगे, तो हमारी ये चिंता हमारी सदा के लिए इस चिंता से हमें मुक्ति मिल जाएगी। ये चिंतना से चिंता खत्म। जी, ये चिंतना इससे से चिंता जी खत्म। इस विचार से ये विचार खत्म। तो इस इस विचार चिंतन से विषाद, इस चिंतन से ये चिंता खत्म। इस विचार से ये विषाद खत्म। यस जी, तो इस ज्ञान से कि हम शाश्वत हैं, ये सुख दुख अशाश्वत है, जितना अधिक से अधिक हम ये ज्ञान लेते जाएंगे, तो इस चिंतन से हमारी चिंता समाप्त हो जाएगी और इस विचार से हमारा विषाद समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फाइन। And now we are going to learn something deeper in this teaching. See, Lord Sri Krishna is saying the true cause of your worry is not Sukh Dukh. All these days we were believing that the true cause of Sukh or true cause of worry is Sukh Dukh. Lord Sri Krishna says that he is not the villain. I will introduce the original villain to you. आप लोग सब सोच रहे हैं
कि वही प्रतिनायक है। लेकिन वास्तविकता मैं बताऊंगा आपको, वो असली वास्तविक प्रतिनायक कौन है। वास्तविकता में और एक बड़ा प्रतिनायक है। प्लीज टेल देम इन हिंदी। जी, तो गुरुजी यहाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण हमें ये बता रहे हैं कि साधारण रूप से आप सब सोचते हैं कि आपकी चिंता का कारण सुख दुख है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वास्तविकता तो ये है कि ये असली विलन नहीं है, असली प्रतिनायक सुख दुख नहीं है। लेकिन मैं आपको एक असली प्रतिनायक को आपके समस्त प्रस्तुत करूंगा। ये सुख दुख जो आप मान रहे हैं कि ये प्रतिनायक है, वास्तव में वे प्रतिनायक नहीं है, पर प्रतिनायक कोई और है। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो असली खलनायक कौन है? खलनायक कौन है? खलनायक है मात्रा स्पर्शास्त्र। That is the data collected by the sensory organ. Matra sparsha. Matra sparsha. Matra sparshastu. Matra sparshastu. That is, he is the Khalnaik. He is the Khalnaik. Matra sparsha. स्पर्शः। That is Matra sparsha. Matra sparsha. स्पर्शः। In Telugu we call it Matra sparsha. लेकिन Sanskrit word is Matra sparshastu. The word is Matra sparsha, maybe, yes. Matra sparsha. Matra sparsha. That is the data collected by the sensory organs, and that is, if you translate that in Hindi, it is Vishayendriya Samyog. It is Vishayendriya Samyog. There are three words in that. Vishya means the data. Indriya means sensory organs. Samyog means contaminating our thinking pattern with the data collected by the sensory organs. That is the crucial villain. Even the data is not villain. Even the sensory organs are not the villain. But contaminating, identifying, samyog, वही है विलन। विषयों के संयोग, इंद्रियों से जो विषय को हम कलेक्ट कर रहे हैं, इंद्रियों से जो विषय को हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसी से हम आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसी से मिलन हो रहा है, उसी से संगम हो रहा है। सो विषयेंद्रिय संयोग इज द विलन, नॉट विषय, नॉट इंद्रिय, बट विषयेंद्रिय संयोग. What is Vishya in Vishayendriya? What is Vishayendriya means the data collected by the sensory organs. Samyog means contaminating our thinking pattern with the data collected by the sensory organ. इंद्रियों से जो विषय को हम प्राप्त कर रहे हैं ना, हम अपना विचारधारा को उससे हम मिलन कर रहे हैं, वही है हमारा ट्रेजेडी का, हमारा दुख, हमारा परेशानी का वजह है. I tell you, my dear friends, all these days we are believing that the villainary aspect in us is Sukha or Dukh. The villainary aspect is Sukha or Dukh. Yes. And some matured people will think that the villainary aspect is the sensory organ. Some more people are of the opinion that the villainary aspect is the data collected by the sensory organ. But the true villain is Samyog. Contaminating our thinking pattern with the data collected by the sensory organs is giving Sukha or Dukh. That is the magic. Yes. तो गुरुजी यहाँ पे इस श्लोक का, shall I tell you bit by bit? Shall I tell you bit by bit? It's okay. Yeah, जी गुरुजी. Yes. All these days, entire human beings are of the opinion that the cause of worry is Sukh or Dukh. Yes. तो आज तक हम ये समझते आए हैं और पूरी मानव जाति ये समझते आई है कि उनकी चिंता का कारण, उनकी समस्या जो है वो सुख और दुख है. Yes. What is Sukh or Dukh? Sukh is also the outcome of incidents which are happening in the real life. Dukh is also
the outcome of the incidents which are happening in the real life. अपने पदार्थ रूप जगत में जो जो घटनाएं घट रहे हैं उसका परिणाम ही सुख और दुख है। हमारा निजी जिंदगी में जो घटनाएं घट रहा है उसका परिणाम स्वरूप में ही हमको सुख मिल रहा है, हमको दुख मिल रहा है। यस। तो गुरुजी कह रहे हैं कि सुख और दुख क्या है? जो पदार्थ रूप जगत में, हमारे भौतिक जगत में जो भी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, वे घटनाएं ही उनका अनुकूल रूप सुख है, और वे प्रतिकूल यदि घट जाए तो वो दुख है। Fine. But Lord Sri Krishna is revealing certain unexplored truth. खुलासा, प्रतिनायक का खुलासा अभी कर रहे हैं इस श्लोक में। तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमारे सामने खलनायक के बारे में, खलनायक का चेहरा हमें दिखाने जा रहे हैं, खलनायक को हमारे सामने लाने जा रहे हैं। The astonishing thing is, the villainary aspect is not the incident. The villainary aspect is not the sensory organs, but the data collected by the sensory organs. Not even the data collected by the sensory organs, but contaminating our thinking pattern with the data collected by the sensory organs. That you teach them. तो गुरुजी कह रहे हैं यहाँ पर कि असली खलनायक जो है वो ना तो इंद्रियां हैं, ना इंद्रियों के द्वारा लाई गई एकत्र की हुई सामग्री है, जानकारी है, तो ये भी नहीं है। ना तो आपका खलनायक जो है चिंता का कारण, ना तो सुख दुख है, ना ही आपकी इंद्रियां हैं, ना ही इंद्रियों के द्वारा एकत्रित किया गया समाचार है, लेकिन इन विषय इंद्रियों का संयोग, यानी कि उससे अपने विचार संविधान को जब हम मलिन करते हैं, इन सब को, अपने विचार संविधान को हम दूषित करते हैं, तो ये जो संयोग होता है हमारे विचार संविधान से इन विषयों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा लाई गई, जो इंद्रियों के द्वारा लाए गए समाचार से, भौतिक जगत के समाचार से जब हम अपने विचार संविधान को मलिन करते हैं, तो ये संयोग जो है वही वास्तविक खलनायक है। Perfect. So how do you handle the data collected by the sensory organs? Now I am teaching you the way out. How do you handle the data collected by the sensory organs? Yes. तो गुरुजी कह रहे हैं कि ये कैसे संभव है, कैसे आप इन इंद्रियों के द्वारा एकत्र की गई जो जानकारी है, इन सब से आप कैसे व्यवहार करें, इनको कैसे हैंडल करें, वो गुरुजी अभी बताने जा रहे हैं। See, the more and more you realize the truth about your true self, the more and more it will be, you can easily handle this with the information collected by the data collected by the sensory organs. You will never contaminate. It is like it goes by default into dustbin, the data. तो जितना अधिक से अधिक आप अपने स्वयं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जितनी अधिक से अधिक ज्ञान, सत्य आप अपने स्वयं के बारे में प्राप्त करेंगे, उतना अधिक ही सरलता से और उतनी ही अधिक अच्छी तरह से आप इन जो समाचार है, विषय इंद्रियों के द्वारा किए हुए जो समाचार है, इन सब से आप बहुत अच्छी तरह से व्यवहार कर पाएंगे। And I'm just putting you on simple questions to you. Whether you believe in Lord Sri Krishna's teachings, whether you respect Lord Sri Krishna or not. तो गुरुजी हमसे एक ही बात पूछ रहे हैं कि क्या आप भगवान श्री कृष्ण को और उनके बताए हुए बातों को, उनके कहे हुए वचनों को आप सम्मान करते हैं या नहीं? No, I mean to say whether you respect Lord Sri Krishna or not. तो गुरुजी कह रहे हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं या नहीं? If you are respecting Lord Sri Krishna, you have got to obey the beautiful teachings taught by Lord Sri Krishna. That is implied.
तो स्वाभाविक रूप से यदि आप भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं, तो उनके द्वारा बताई हुई ज्ञान, उनके द्वारा कहे हुए वचन जो भगवत गीता के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, उनका भी सम्मान करेंगे। तो अमृत तुल्य उपदेश को भी आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। अमृत तुल्य उपदेश को भी आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। दैट इज फाइन। देन लॉर्ड श्री कृष्ण सेज, you are there in the existence since and you are going to continue in this existence forever. आप कभी भी है, आप सभी भी है, कभी भी है, और you are going to exist forever. तो श्री कृष्ण ने जैसे कि हम सबको ये ज्ञान दिया, ये सत्य से हमें अवगत कराया कि आप सभी हैं और आप आदि से हैं, सदा हैं और आप हमेशा सदैव रहेंगे। आप सभी सदा हैं, उपस्थित हैं, विद्यमान हैं और आप सदा सदैव रहने वाले हैं। That is, we are शाश्वत। हम शाश्वत हैं। अर्थात हम सब शाश्वत हैं। Then simple question is, see, when I analyze myself, the so-called Vivek is in my life for the last 50-60 years. And he is going to be there for few more years. But this Vivek was not there in the sense, no? आदिकाल से विवेक का अस्तित्व नहीं है ना। मैं आत्म चैतन्य हूं, मैं आदिकाल से अस्तित्व हूं, काल के पहले से ही, काल के आदि से ही मैं अस्तित्व में हूं। बीच में एक विवेक मेरी जिंदगी में घुस बैठा और वो अभी 50-60 इयर्स से मेरे से उसका ताल्लुक है, कुछ दिनों के बाद वे चले जाएगा। यस। तो गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी के अंदर, जो गुरुजी के साथ में जो उनका जो नाम है, उनका जो चरित्र है विवेक, वो पिछले 50-60 सालों से उनके साथ है। वो आदि से तो उनके साथ उपस्थित नहीं था, मौजूद नहीं था, और कुछ वर्षों के उपरांत ये जो विवेक नाम का चरित्र है वो चला जाएगा, वो नहीं रहेगा। लेकिन जो गुरुजी हैं, जो गुरुजी हैं, वो सदा आदि से थे, अभी भी है और भविष्य में भी रहेंगे। In the sense, if I analyze myself, there are true I ams. There are two I ams. One I am is a forever I am. One I am, which I am considering as myself, is there for only 60-70 years. There are two I ams. तो यदि विश्लेषण करें हम, तो हम सब में दो स्वयं है, दो आयाम है, दो स्वयं है। एक स्वयं वो है जो कि शाश्वत रूप से सदा विद्यमान रहता है, और दूसरा स्वयं वो है जो कि कुछ वर्षों तक ही जिसका अस्तित्व सीमित रहता है। सीमित है। Then now the question is, what is the relationship between that true I am and this temporary I am? शाश्वत रूप से जो जिंदगी जी रहा है, उस शाश्वत स्वयं और ये अशाश्वत स्वयं के बीच में रिश्ता क्या है? What is the relationship between that true I am and this I am? तो ये जो दो आयाम, दो स्वयं हमारे अंदर मौजूद हैं, जो शाश्वत स्वयं है और ये एक जो तात्कालिक रूप से हमारे साथ मौजूद है, ये जो अशाश्वत स्वयं है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? And if you analyze, it is like a cinema actor and the character preferred by that actor in a particular movie. Like in Bahubali, one Mr. Prabhas has preferred to play the character of Amarendra Bahubali. The relationship between Prabhas and Amarendra Bahubali is just like that. आत्म चैतन्य मैं हूं और आत्म चैतन्य और विवेक के इस दोनों के बीच में रिश्ता भी उसी
वैसा ही है। तो गुरुजी कहते हैं कि ये जो अशाश्वत स्वयं है और शाश्वत स्वयं है, इन दोनों के बीच का संबंध बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक अभिनेता, कोई भी अभिनेता, एक जो किसी भी किसी भी मूवी में, किसी भी सिनेमा में जो वो पात्र जो निर्वाह चरित्र। करता है, जो जिस चरित्र का निर्वाह करता है, तो उस चरित्र के बीच में और उस अभिनेता के बीच में जो संबंध होता है, जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया कि एक मूवी थी बाहुबली। तो बाहुबली में प्रभास नाम का अभिनेता, उसने वो अभिनेता प्रभास था और उसने अमरेंद्र बाहुबली नामक एक चरित्र निभाया उस मूवी में। तो प्रभास और अमरेंद्र बाहुबली के बीच में जो संबंध है, बिल्कुल वही संबंध उस आत्म चैतन्य स्वयं में और इस तात्कालिक स्वयं के बीच में भी वही संबंध होता है। Fine, that is great. So if you analyze if you view our character from the point of view of our foreverness, you will realize that this is not true. अगर हमारा शाश्वतत्व के नजरिया से, अगर हम हमारा शाश्वतत्व के नजरिया से इस चरित्र का विश्लेषण किया तो हमें ये साफ साफ सच मालूम हो जाता है कि चरित्र का अस्तित्व ही नहीं है, ये सिर्फ एक नाटक है। अगर हमारा शाश्वतत्व के नजरिया से इस चरित्र का विश्लेषण करने का प्रयास किया तो हमें ये मालूम हो जाता है, साफ साफ सच हमको मालूम हो जाता है कि इस चरित्र वास्तव में इसका अस्तित्व ही नहीं है, ये नाटक ही नाटक है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि यदि हम उस शाश्वत तत्व के नजरिए से हम यदि इस चरित्र का अवलोकन करें, इस चरित्र को हम अगर समझने की, देखने की कोशिश करें, तो हमें एक चीज बहुत सुस्पष्ट हो जाती है, एकदम क्लियर हो जाती है कि इस चरित्र का ये चरित्र एक नाटक है, इस चरित्र का कोई अस्तित्व नहीं है। शाश्वत तत्व के दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से यदि हम इस चरित्र का अवलोकन करें तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये चरित्र तो वास्तव है ही नहीं, ये तो केवल एक नाटक है और एक झूठ है। झूठ। Then supposing, let us take the example of Bahubali. In that movie, Amarendra Bahubali was so happy because the queen has announced that he's going to become a king within a few days. उनके प्रमाण स्वीकार उत्सव होने वाला है, बहुत खुशी है। On that day, he has finished that, on that part he has completed, he came back to house. And the sad part is, some kith and kin of his family members or some relatives, they got expired. Everybody is in a tragic mood. But this fellow was so joyful, so blissful, so happy. This fellow is not joyful, so happy, so happy. He was cracking jokes with everyone. Say, are you stupid being here? Hey, someone died here, boss. Why you are cracking jokes? Means, no, I'm so happy because tomorrow is going to be my ceremony. Both of ceremonies happening tomorrow. Whether you support his behavior? तो गुरुजी कह रहे हैं कि मान लीजिए कि इसी एक सिनेमा के दृश्य का एक दृष्टांत लें, तो इसमें एक दृश्य चित्रित हो रहा है, एक शूटिंग हो रही है वहां पर कि बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली महारानी ने उनका नाम उन्हें राजा घोषित कर दिया, उन्हें उनके राज्य का भावी राजा घोषित कर दिया है। तो अमरेंद्र बाहुबली बहुत ही प्रसन्न है, खुश है। तो ये जो पूरा दृश्य था, ये पूरा चित्रित हो गया, मतलब उसकी शूटिंग खत्म हो गई और ये प्रभास जो है वो बहुत खुश है,
क्योंकि वो अब राजा बनने वाले हैं और उनके प्रमाण स्वीकार मतलब यानी कि शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो समारोह वहां पर चल रहा है। शूटिंग खत्म हो गई और अमरेंद्र बाहुबली बहुत प्रसन्न है और ये प्रभास भी बहुत प्रसन्न है। वो इसी प्रसन्नता में, उसी खुशी में अपने घर आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उनके घर में किसी सदस्य की, उनके किसी संतान, किसी बच्चों की का स्वर्गवास कोई हो जाता है। रिश्तेदार का किसी स्वर्ग। किसी रिश्तेदार की, उनके किसी सगे संबंधी की का स्वर्गवास हो जाता है। तो घर में सब दुख का वातावरण है, लेकिन ये प्रभास इतना खुश है कि वो घर जाते हैं और हास्य व्यंग करते रहते हैं क्योंकि वो बहुत खुश हैं। तो सबके सब वहां इतने दुख के माहौल में, इस दुख के वातावरण में यदि प्रभास अपने आप को अमरेंद्र बाहुबली ही मानते हुए और उसकी खुशी से ये भी खुश होते हुए और ये करना मतलब हास्य व्यंग्य करना और बहुत खुश रहना और अपने आप को खुश दिखाना भी, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। Yes. In the same way, Amarendra Bahubali, I mean Prabhas wanted to celebrate his birthday or like that. He has invited his friends, lot of his friends from all over the world, and they have responded to his invitation. And the party was about to commence in a 7-star hotel. The beautiful, grandest cocktail party was about to commence in a 7-star hotel. So guests have come from all over the nook and corners of the world. And that day also shooting is there. That Prabhas was a little bit late because he has got to complete the schedule in the movie. And he has completed his role in the movie and he has come back to the 7-star. But everyone is in so joyful mood, inviting him cheerfully. He is so cool. Everyone is inviting him. Everyone was there in so happy mood. But this fellow was in a tragic mood. If you see his face, you are also going to weep for no reason. His face is like that. Then everybody got insulted. You have invited us. We have come all the way from all the nook and corners. You have invited us and your face is like that. So it is like an insult to us. It is indirectly or insulting us. So he is not even attending his guests. He was in a so sober mood. He was in so dull. Then his mother asked, what happened? You are insulting your guests. You are not even attending your guests. What has happened? Then he said, I have believed in Kattappa. He has also, with a vendetta mood, he has ruthlessly killed me. Backstabbing हो गया, ऐसा बोल रहा। You support that behavior? तो एक और दृष्टांत गुरुजी बता रहे हैं कि उसी मूवी में, उसी सिनेमा में एक बार ऐसा हुआ कि प्रभास का उसका जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है। उसने जन्मदिन की पार्टी अपनी दी है और पूरे संसार से, सारे संसार के कोने कोने से उसने बहुत बड़े बड़े लोगों को उसमें आमंत्रित किया है अपनी पार्टी में। तो उस दिन भी उसका प्रभास की शूटिंग होती है, उसी मूवी के कुछ दृश्य चित्रित किए जा रहे हैं, वहां पे शूटिंग किए जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि उसे वो शेड्यूल अपना कंप्लीट करके, उसकी शूटिंग कंप्लीट करके आना होता है। और ऑलरेडी उसके घर पे पार्टी के लिए सारे जो गेस्ट हैं, सारे जो मेहमान हैं, वो सारे आ चुके हैं। तो शूटिंग कंप्लीट करके जब प्रभास घर आता है तो वो बहुत ही दुखी और बिल्कुल उसके चेहरे पे पूरा विषाद, इतना दुख है उसके चेहरे पर कि उसे अगर देखें तो हम भी दुखी हो जाएं, इतना उसने दुखी चेहरा बना के वो अपने ही घर में प्रवेश लेता है। और वो किसी भी अपने मेहमान को अटेंड भी नहीं करता है, उनसे बात भी नहीं करता है और उनको हेलो तक नहीं बोलता है किसी को भी। और ऐसे ही अंदर चला जाता है। उसके सारे गेस्ट बहुत इसको अपमान महसूस करते हैं, बहुत अपमानजनित अपने आप को वे सब अनुभव करते हैं। तो उसकी जो प्रभास की माता जी हैं, तो वो उससे पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हो? तुमने अपनी पार्टी के लिए सारे गेस्ट को, सारे मेहमानों को बुलाया है और तुम उन्हें
पूछ भी नहीं रहे हो, उनसे बात भी नहीं कर रहे हो, वे बहुत अपमानजनित महसूस कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हो? तो वो कहता है कि माँ, मैंने कटप्पा पे पूरा विश्वास किया था, मैंने कितना विश्वास किया था उसके ऊपर, और उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरी पीठ में उसने छुरा भोंक दिया। तो गुरुजी पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह के व्यवहार का आप समर्थन करेंगे? So the problem is Prabhas has identified himself with the character he is playing. That is the root cause of all this problem. In the same way, if we are identifying ourselves with the character we are playing, then immediately we will be giving unwanted priority. Will be influenced by the will be influenced by the data collected by the sensory organs. The more and more we know the truth about ourselves, there will be separation from the human self with the spiritual self. That is the thing. तो गुरुजी कह रहे हैं कि यहाँ उसके इस तरह के व्यवहार का कारण ये था कि उसने जो चरित्र निभाया, प्रभास ने जो उस सिनेमा में चरित्र निभाया, वो अपने आप को वो चरित्र समझ रहा था, अपने आप को उस चरित्र से, अपने आप को उससे जान रहा था, मान रहा था, वो चरित्र मान रहा था। तो उसकी इस व्यवहार का, इस बहुत ही मतलब शोचनीय जो व्यवहार है, उसका कारण ये था। तो गुरुजी कहते हैं कि हमारे जीवन में भी हम भी अपने आप को, हम जो चरित्र निभा रहे हैं, यानी कि जैसे मैं ममता का चरित्र निभा रही हूँ, ऐसे हम सब जिस चरित्र को निभा रहे हैं, उस चरित्र से अपने आप को पहचान रहे हैं, अपने आप को वो चरित्र ही मान रहे हैं। और जैसे जैसे हम, इसीलिए हमारा जो व्यवहार है, इस चरित्र की सारी बातों को हम अपना मान रहे हैं, इस चरित्र की घटनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें एक सत्य मालूम होता है, हमें एक ज्ञान मालूम होता है कि मैं ये चरित्र नहीं हूँ, ये चरित्र कुछ समय तक मेरे जीवन का भाग है, लेकिन मैं समय तक इस चरित्र का पोषण इस चरित्र कर रहा को हूं, पालन कर। जी जी गुरुजी। सो ये जो चरित्र है, ये कुछ समय तक मैं इस चरित्र का निर्वाह कर रहा हूँ। केवल बस इस चरित्र की वास्तविकता यही है कि कुछ समय तक मैं इस चरित्र का निर्वाह कर रहा हूँ, बस। और जब जैसे जैसे हम इस सत्य को जानते जाएंगे, तो वैसे वैसे हम इस चरित्र से अलग होते जाएंगे, इस चरित्र से पृथक होते जाएंगे, और अपने आप को हम जी जी गुरुजी। Got it in it. कुछ तकनीकी परेशानियों की वजह से गुरुजी से हमारा इसमें से संपर्क थोड़ा सा, गुरुजी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने फोन पर मुझे जो ज्ञान दिया है वो मैं आप सबको बताती हूँ कि इस जो श्लोक में, इस श्लोक का जो वास्तविक अर्थ है, इस श्लोक से बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि जितना अधिक से अधिक हम अपने निज तत्व के बारे में जितना अधिक से अधिक ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, उतना अधिक से अधिक हम इस चरित्र और आत्म चैतन्य के बीच में भेद कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे, दोनों को अलग अलग कर पाएंगे। और जितना हम आत्म चैतन्य को इस चरित्र से अलग कर पाएंगे, तो हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि आत्म चैतन्य चरित्र नहीं है, इस चरित्र का अस्तित्व वास्तव में है ही नहीं, ये चरित्र भ्रम है। तो जैसे जैसे हमें ये बात पता चलते जाएगी, इस चरित्र में घट रही घटनाएं भी हमारे लिए, उनका अस्तित्व भी समाप्त होता जाएगा, और उनमें घट रही घटनाओं का असर हमारे ऊपर बहुत बहुत ही कम हो जाएगा, या यूं कहें कि समाप्त हो जाएगा। यदि रहेगा भी तो बहुत ही असरहीन, प्रभावहीन रहेगा। तो इस तरह से
जितना अधिक से अधिक हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतना अधिक से अधिक इस चरित्र और चैतन्य का भेद बढ़ जाएगा, और जितना भेद बढ़ जाएगा, चरित्र में घटने वाली घटनाओं से भी हम उनसे, उनके असर से भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो इस श्लोक का अंतरार्थ, निगूढ़ अर्थ गुरुजी हम सबको बताना चाह रहे थे। तो इसी के साथ आज का ये सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।